लास्ट के 5 और 10 मिनट्स में फिर मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा आपके प्रॉब्लम, ठीक है? लास्ट 5 10 मिनट्स, ठीक। नाउ exercise 6.3, tangent and normal. Our concept is tangent and normal. And according to NCRT, we are doing exercise 6.3. First of all, we should clear about tangent. What is tangent and what is normal according to your differentiation, any mode of derivative. Suppose our function y is equal to fx is given. A function y is equal to fx given है in x-axis as well as y-axis. Like this. Why should not your people are camera on? आपके कैमरे क्यों नहीं ऑन करते हैं? Each and every time you should record, open your camera, open your camera. That's why you're not getting a full marks in your attendance, all subjects. इसी वजह से आपके नंबर कम होते हैं. Each and every time I recall you, open your camera, open your camera. Only 2 students are Aryan, Hitesh, and Akshita. 3 students open the camera. Otherwise, all stop the camera and our function y is equal to fx, like in this one manner. Suppose curve is given like this one, right? Curve is given like in this one manner. First of all, if I say a line passes through or touch to this points, यानी एक लाइन पास करती है और इस कर्व को किसी इस सिंगल पॉइंट्स पे टच करती है. मैंने वर्ड यूज किया टच करती है. A line touch to the curve at single point is known as the tangent. So your first word is clear. What is the meaning of tangent? Also you should write in your copy. Tangent क्या है? A line which touch to curve at single point. A line which touch to the curve at single point. ठीक है? और जिस सिंगल पॉइंट पर टच करेगी उसको क्या बोलेंगे? उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सो दीज आर व्हाट? दीज आर द लाइन who passes through, यानी वो touch the curve at the single point. Single point known as the point of contact. Suppose अगर ये पॉइंट है मेरा x1 and y1, so what is the equation of straight line? So equation of straight line is what? Y minus y1 equal to m in bracket x minus x1. Already discussed in class 11. ये किसी सिंगल पॉइंट से अगर लाइन जाए तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? y minus y1 equal to m x minus x1. But in differentiation, your m is what? dy upon dx at the given point. And here is what? This is your x minus x1. So this is what? This is your equation of tangent. This is what? This is your equation of tangent. ये मैंने tangent की इक्वेशन आपके सामने जनरेट कर दी. First thing. Second thing is what? Normal. Normal क्या होता है? Normal is a line which is tangent to the, which is 90 degree. जो tangent उस पे 90 degree होता है ऐसे. And always passes to the curve to the center. Normal what? It's always perpendicular to tangent. टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा और क्या करेगा? एंड passes through center of curve. ठीक है? तो टेंजेंट क्या है? नॉर्मल क्या है? इट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड passes थ्रू सेंटर टू द कर्व. इसके परपेंडिकुलर हो और कुछ इस तरह से पास होगा. आई थिंक दिस लाइन इज क्लियर. यानी एक जो लाइन है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे नॉर्मल. तो मतलब क्या हुआ? टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो दोनों के जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा? दैट इज -1. यहां लिख रहा हूं मैं. सो स्लोप ऑफ नॉर्मल into slope of tangent equal to -1. So slope of normal is what? -1 upon slope of tangent.
and dy upon dx at the given point, this is what? This is the slope of tangent. So -1 upon dy upon dx. तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? -1 अपॉन dy अपॉन dx. तो अगर मुझे बोला जाए नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, तो सेम इसी इक्वेशन में इस m की जगह ये वैल्यू लाके मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो आ जाएगी मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी y माइनस y1 m की जगह -1 अपॉन dy अपॉन dx इन ब्रैकेट x माइनस x1. So this is what? This is your equation of normal, and this is what? Equation of tangent. Here, तो दोनों चीजें पता चल गई. टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन जो कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करे, और उस सिंगल पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इक्वेशन कैसे निकालते हैं? दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. नाउ व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज अ लाइन, इट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्व, और सेंटर ऑफ कर्व से वो पास होती है. वो क्या होती है? उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल. और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? नॉर्मल का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा? -1. तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? -1 अपॉन dy अपॉन dx. इसको इसी कर्व की इक्वेशन पुट कर दिया, सो दैट इज व्हाट? दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. y minus y1 equal to -1 upon dy upon dx in bracket x minus x1. Here also these two points are clear. These points अच्छे से समझ में आ रहे हैं कि टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है. नाउ अब हम इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे हमारे क्वेश्चंस, ठीक है ना? इनको हम किस तरह से कैलकुलेट करें? यस यस बेटा, एनी डाउट? सर ये ग्राफ रब मत करो. ओके, आई एम नॉट रबिंग दिस ग्राफ. Now one marker question डिस्कस करेगा, one marker और two marker में. They ask find the slope of curve. Slope of curve is what? Slope of tangent. For example, if question is y is equal to 3 into x raised to power 4 minus 4x. They are asking that at x equal to 4. They are what? They are asking find slope of the curve. Slope of the curve is, that is what? Dy upon dx. So you are going dy upon dx. 4 3 are 12. 12x cube minus, और इसका क्या हो जाएगा? 4. और x वैल्यू 4 के यहाँ पुट कर देते हैं. 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4. तो 4 का क्यूब कितना हो गया? 64. 64 मल्टीप्लाई 12 माइनस 4. दिस इज द आंसर dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 4. दिस इज वन मार्क. सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट dy अपॉन dx, यानी स्लोप ऑफ द कर्व इज आल्सो नोन एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. वो क्या होता है? दैट इज dy अपॉन dx. ये मैंने आपका किया वन मार्कर क्वेश्चन. ऐसे में टू मार्कर क्वेश्चन में सिंपल किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज dy अपॉन dx ऑफ एनी कर्व इज नोन एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं? dy अपॉन dx का रिवर्ट कर दिया, यानी -1 अपॉन dy अपॉन dx. सपोज इसी क्वेश्चन में बोला जाता फाइंड आल्सो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो आप लिखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल is equal to -1 upon dy upon dx. So -1 divided by this into this 64 into 12 minus 4. So solve कर लेंगे. That is what? That is your slope of normal. This is your one marker question. Suppose two marker question में पूछूं आपसे slope of tangent या slope of normal के बारे में, तो अब आपसे कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म्स में सॉल्व कर सकते हैं. जैसे देखा x इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा, y is equal to b cos square theta, right? They are asking at theta equal to pi by 4, at theta equal to pi by 4, find equation of tangent. उसे बोला find equation of tangent. टेंजेंट की इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट dy अपॉन dx. तो dy अपॉन dx के लिए क्या करें? पहले इसको करते हैं dx अपॉन d थीटा. a sin स्क्वायर थीटा, दैट इज व्हाट? दैट इज 2 sin थीटा, अप्लाइंग चेन रूल, एंड sin थीटा का डिफरेंशिएशन फर्दर
that is cos theta. Now dy upon d theta. p is b cos square theta क्या हो जाएगा? That is 2 cos theta and cos theta का further differentiation minus sin theta. क्या निकालना है? That is dy upon dx. That is equal to dy upon d theta divided by dx upon d theta. So dy upon d theta is what? This one, minus 2b cos theta sin theta divided by dx upon d theta. 2a sin theta cos theta. Sin and sin cancel out, cos and cos, 2 and 2 cancel out. You will get minus b upon a. ये आ गया आपका dy upon dx, राइट? आपसे उसने पूछा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? y माइनस y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1. तो हम dy upon dx को निकाल लिया, आप ये यहाँ पुट कर देंगे. बट x1 y1 इज नॉट नोन. So what to do if x1 y1 is not known? तो ये है आपके x1 और y1. अगर थीटा को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, सॉल्व कर लो, दैट इज योर x1 एंड y1. सॉल्व करके इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, राइट? सबसे पहले क्या करते हैं? वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं. तो x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा की जगह पाई बाई 4. साइन पाई बाई 1 बाई रूट 2. 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2. तो जो x इज व्हाट? a बाई 2. और 1 बाई रूट 2 स्क्वायर दैट इज 1 बाई 2. y इज इक्वल टू यहाँ पुट कर लेते हैं b सेम वैल्यू b बाई 2. तो ये आपके x1 y1 बन गए. इनको जाके यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे. दिस वन फॉर्मूला यहाँ फिर से मैं लिख रहा हूँ, y माइनस y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट में x माइनस x1. y माइनस y1 दैट इज b बाई 2. dy अपॉन dx क्या है? माइनस b अपॉन a इन ब्रैकेट x माइनस x1 इज व्हाट? a अपॉन 2. दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई. इफ दे आर आस्किंग फाइंड इक्वेशन ऑफ आल्सो नॉर्मल, तो इसी से मैं लिख दूंगा नॉर्मल. कैसे? y माइनस बी बाई 2 इक्वल टू, ये स्लोप है, इस स्लोप को माइनस लगा के रिवर्ट कर दूं. माइनस लगा के रिवर्ट दैट इज a अपॉन b हो जाएगा. एन एक्स माइनस a अपॉन 2. दिस इज व्हाट? दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो टेंजेंट की इक्वेशन से स्लोप को सिर्फ माइनस लगा के रिवर्ट कर देंगे, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. क्लियर? इस तरह से 2 और 3 मार्कर में हम टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. आई होप सो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ ये टेंजेंट और नॉर्मल पे क्वेश्चंस कर रहे थे. एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड. आई होप सो दिस पार्ट इज क्लियर. यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं. ठीक है. नाउ अब वो कह रहे हैं, नाउ आवर क्वेश्चन इज व्हाट? y is equal to x minus 1 upon x minus 2. Then at x equal to 10, find x equal at x equal to 10. पहले आप इसका स्लोप निकालें. फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्लोप dy upon dx using division rule. x minus 2 डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्या है? 1 माइनस ऑफ x minus 1, इसका भी 1 आएगा, अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर. तो x minus 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x minus 2 का होल स्क्वायर. माइनस 1 कैंसल आउट. माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x minus 1 का होल स्क्वायर. दैट इज dy अपॉन dx. ये आया आपका dy अपॉन dx. दैट इज व्हाट? दैट इज स्लोप ऑफ द कर्व, यानी टेंजेंट के लिए. अब वो बोला फाइंड एट x इक्वल टू 10. और क्वेश्चन क्या बोला है? एट x इक्वल टू 10 फाइंड आल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. तो ठीक है, पहले तो इस 10 को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ. 10 में से बन गया 9 स्क्वायर 81.
स्लोप ऑफ योर टेंजेंट इज -1/81, ये आ गया। x इक्वल टू 10 है, इसको यहाँ पुट कर लिया तो y आ जाएगा, पॉइंट भी चाहिए मुझे। तो 10 में से 1, 10 - 1 9, 10 में से 2 गया 8, y आ गया 9/8, x आ गया ये। पॉइंट्स पता है, स्लोप पता है, एंड नाउ सिंपल, अब आप निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। y माइनस y1 m है -1/81 in bracket x minus x1 is 10। सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर नॉर्मल कहेगा तो इसी को माइनस लगा के इसको रिवर्ट कर लेंगे, +81 हो जाएगा। दैट इज व्हाट, दैट विल बी योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो फिर नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, राइट? इसमें इशू नहीं होगा। I hope so this part is clear. Suppose that, ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल इक्वेशन निकाल लिया मैंने। सपोज दैट एक डिफरेंट स्ट्रक्चर पे, डिफरेंट प्लेन यानी एक्स एंड वाई, टू कर्व एक दूसरे के 90 डिग्री हो जाए, लाइक दिस वन। इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व। दैट इज नोन एज ऑर्थोगोनल कर्व। यानी ये एंगल कितना है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये एंगल आ जाएगा आपका 90 डिग्री, यानी इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करें, इनके बीच का एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। तो ऐसे कर्व को बोलते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल कर्व। ऑर्थोगोनल कर्व। अगर ऑर्थोगोनल कर्व को आपको चेक करने को आए तो व्हाट्स द प्रोसेस, इसका प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दोनों कर्व की इक्वेशन को सॉर्ट आउट करके फाइंड वैल्यू ऑफ दिस वन ए, लेट पॉइंट्स आर x1 y। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपका फर्स्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेकेंड, दोनों कर्व की इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट होगी। फर्स्ट कर्व सपोज y इक्वल टू fx1 है, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे dy अपॉन dx, नाम रख देंगे दैट इज योर m1। थर्ड स्टेप, सेकेंड कर्व y इक्वल टू fx2, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, पुट डाउन द नेम m2। फोर्थ स्टेप, 90 डिग्री पे तो स्लोप m1 m2 इक्वल टू व्हाट, -1। दोनों वैल्यू यहाँ, दोनों कर्व की वैल्यू पुट कर देंगे एट द गिवन पॉइंट, dy अपॉन dx इक्वल टू -1। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपको एक कंडीशन कैलकुलेट हो जाएगी फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, दिस वन प्रोसेस यू हैव टू यूज, इस प्रोसेस को आप यूज करेंगे टू सॉल्व फॉर आवर ऑर्थोगोनल क्वेश्चन। इसमें आपको सिंपल डिफरेंशिएशन का यूज करना है, राइट? देखो ऑर्थोगोनल पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास टू कर्व है। जो फर्स्ट कर्व की जो इक्वेशन है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज xy इक्वल टू k। फर्स्ट है x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड सेकेंड वन है xy इक्वल टू k। These two curves, they are saying that prove that these two curves x equal to y square and xy equal to k cut at right angle 90 डिग्री पे कट करते हैं, यानी ऑर्थोगोनल हो गया। कब? when 8k square equal to 1। ये प्रूफ करना, when 8k square equal to 1। so what to do? simply क्या करें, पहले इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताया था ना, ये फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x इक्वल टू वाई स्क्वायर तो पुट किया, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल टू k और y इज इक्वल टू k रेज टू पावर 1/3। y इज इक्वल टू k की पावर 1/3। अब इस y को यहाँ पुट करेंगे तो x आ जाएगा k की पावर 2/3। तो मेरे पास x आ गया एंड ऑल्सो y आ, x और y दोनों कैलकुलेट कर लिए, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब दोनों कर्व को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं।
तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x का 1, y स्क्वायर का 2y, अगेन y का dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx आ जाएगा 1 अपॉन 2y, 1 अपॉन 2y, y कितना निकाला आपने, k रेज टू पावर 1/3। ठीक, इसका नाम रख दिया आपने m1। ये m1 की वैल्यू आ गई। सेकेंड वन के इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू के, तो y आ जाएगा k अपॉन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएट करें अगर, तो dy अपॉन डी एक्स, के अपॉन एक्स क्या होगा, माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज व्हाट, k रेज टू पावर 2/3, यानी k की पावर 4/3, दैट इज m2। तो m1 और m2 आ गए। नाउ अप्लाइंग रूल, दिस वन m1 m2 इक्वल टू -1। why -1? Because these two are at 90 degree. So m1 is 1 upon 2 k raised to power 1/3. m2 is minus k upon k raised to power 4/3 equal to -1। माइनस माइनस कैंसिल आउट कर लें, ठीक है ना, एंड सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट में ये आंसर आ जाएगा 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस वन। Clear? So in this manner you can calculate the orthogonal case study.